Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm Zakaullah and I'm lecturer in ICB 263 serving in English department. And as far as this is the continuation of our recorded lectures, so as we have already concluded argument number 1, so the lesson is about parts of speech. So as far as the parts of speech are concerned, which are already mentioned in the book, and there was an activity for the students to filling the blanks using different parts of speech such as noun, adjective, adverb, or verb, etc. So here, first of all, we'll discuss the types of noun. In simple words, noun is basically name of an object, a person, place, a feeling, or an idea. So one by one, we are going to discuss them. The first one is the common noun. As far as the common noun is concerned, it is used to name people, places, or things in general. It refers to the class of type of person or thing without being specific. For example, girl, city, animal, house, food. And if we give them a special name, a specific name, it becomes proper noun. So it is used specifically for a person or place or a thing. It is a special name. For example, John, London, Toto, France, etc. Then here comes the countable noun. So the countable nouns are those nouns or those objects or persons or things which can be counted. Whereas uncountable nouns are those nouns which can't be counted, rather they are measured. So as far as countable noun is concerned, for example, here we have examples of car, desk, cup, house, bike, boy, girl, city. So all of these things can be counted. Common noun, proper noun, then we have collective noun. So these three types of noun can be counted. Whereas abstract noun and material noun are concerned, those are not counted. They don't fall in numbering. Rather, we have some measurement, tools of measurement for them. For example, we don't say I have 2 works at home. We say I have much work. Likewise, I don't say give me 2 milks, 2 iron, 1 gold. No. We use some quantity for uncountable nouns. On number 5, we have concrete noun. So a concrete noun is a thing or a person that exists physically, and at least one of the sense can be detected. We have 5 senses: sense of touch, smell, taste, and sight, etc.
we can apply any one of them on concrete object. We can see dog, we can touch tree, we can eat apple, we can see moon, we can hear a sound. So abstract noun, as far as abstract noun is concerned, uh, all of our five senses, they are not applicable in determining an abstract noun. For example, love, time, fear, freedom. They cannot be touched, they cannot be smelled, they can't be sight as well. Uh, on number 7, we have compound noun. So the compound noun is name of an object or a person, but it is a combination of two words or three words. For example, rainfall, son-in-law, credit card, etc. On number 8, we have collective noun. So collective noun is basically, it refers to a set or group of people, animals, or things. For example, we have team of players, we have pile of objects, stack, flock, bunch, etc. So these are various types of noun. इन सिंपल वर्ड्स बच्चों को मैं ज़रा समझा दूँ कि नाउन किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम है. मिसाल के तौर पर कोई लड़का हो गया, शहर हो गया, या कोई पेंसिल वगैरह जिसको हम कॉमन नाउन कहते हैं, जिसमें आम नकरा, इसमें नकरा जिसको कहते हैं. इसी तरह इसमें मार्फा होता है. जिस तरह प्रॉपर नाउन, किसी भी ख़ास नाम, जब किसी बच्चे का नाम रख दिया जाए, वो अली बन जाएगा, वो असलम बन जाएगा, जॉन बन जाएगा. किसी शहर का नाम रख दिया, वो लंदन बन गया, वो एक स्पेशल नेम है. इसी तरह काउंटेबल वो नाउन्स हैं जिनको हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल वो नाउन हैं जिनमें खास तौर पर एब्स्ट्रैक्ट और मटीरियल नाउन आते हैं. इनको न गिना जा सकता है, और ना इनके लिए हम जो से वो फरमाइशी टूल्स इस्तेमाल करते हैं. थोड़ा बहुत इस तरह के वर्ड्स होते हैं, 1 2 3 4 के वर्ड्स इसमें इस्तेमाल नहीं होते. इसी तरह कंक्रीट नाउन जो सा है वो ऐसा नाउन है जिसको पकड़ा जा सकता है, देखा जा सकता है. हम अपनी जो 5 6 7 सेंसेस है वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये एक फीलिंग है, एक आइडिया है, ये एक एहसास है जिसको अपने 5 सेंसेस के साथ तो हम डिटर्मिन नहीं कर सकते. इसी तरह कंपाउंड नाउन बेसिकली लफ्ज़ एक ही होता है किसी बंदे के लिए, चीज़ के लिए, जगह के लिए, लेकिन मुख्तलिफ 1 या 2 वर्ड या 3 वर्ड्स के मजमूआ जो है वो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है. जैसे सन इन लॉ, इसमें 3 वर्ड्स हैं. क्रेडिट कार्ड 2 वर्ड्स हैं. उसके बाद फिर आगे लास्ट पे हमारे पास कलेक्टिव नाउन है. ये बेसिकली किसी ग्रुप के लिए, ग्रोह के लिए इस्तेमाल किया जाता है. वो किसी ग्रोह, वो स्टूडेंट्स की हो तो उसको हम क्लास कह देते हैं. इसी तरह जानवरों की हो तो उसको हर्ड कहते हैं, फ्लॉक कहते हैं, पैक कहते हैं. तो इस तरह हमारे टाइप्स ऑफ नाउन जो हैं वो कंप्लीट होते हैं. इसके बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव. एडजेक्टिव बेसिकली इट इज़ अ थिंग टू क्वालिफाई अ नाउन, यानी नाउन की क्वालिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है. हमारे पास प्रॉपर एडजेक्टिव हैं. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, न्यूमरल एडजेक्टिव है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, इंट्रोगेटिव है, और आगे पोजेसिव एडजेक्टिव है. इनकी आगे हम मिसाल के साथ जो है वो आपको समझाते हैं. मिसाल के तौर पर हमारे पास टाइप ऑफ एडजेक्टिव में पोजेसिव एडजेक्टिव, माई, हिज, योर, आर, एक्सेट्रा, ये जो से वर्ड्स हैं ये सारे पोजेसिव. जिस तरह माई पेन, इसमें जो माई है वो एडजेक्टिव है, पोजेसिव एडजेक्टिव है. डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ये इशारे के लिए इस्तेमाल किया जाता है. दिस, दैट, दीज, दोज और सच एज वाले वर्ड्स जो से है वो भी इसमें ऐड किए जाते हैं, जो कि इशारे के लिए. दैट पर्सन, दिस पेन, दोज फ्लावर्स, एक्सेट्रा. इनडेफिनेट एडजेक्टिव ये ज़्यादातर मकदार के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. मिसाल के तौर पर एनी, मैनी, सम, सेवरल, एक्सेट्रा. इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव सवालिया अंदाज में किसी चीज़ को. कौन सा कलम, विच पेन, व्हाट कलर, कौन सा रंग, हुज पेन, किसका कलम, एक्सेट्रा. इसी तरह प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म है, आईएनजी वाली फॉर्म,
वो भी एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किए, और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म जो उनसे, ये भी इन दोनों को बेसिकली पार्टिसिपल एडजेक्टिव कहते हैं। जिस तरह वॉकिंग, ट्रैक, रीडिंग बुक, कुकिंग रेंज, इसी तरह रिटन आर्टिकल, पॉलिश्ड शूज़, पेंटेड वॉल एक्सेट्रा। फिर हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आ जाती है। सबसे पहले नंबर 3 पे जो था वो था इंडेफिनिट एडजेक्टिव, उसके बाद नंबर 4 पे इंट्रोगेटिव, नंबर 5 पे पार्टिसिपल एडजेक्टिव। ये बेसिकली 5 और 6 जिन दोनों को पार्टिसिपल एडजेक्टिव कहते हैं। और नंबर 7 पे हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, गुड, रेड, टॉल, स्टूपिड, फैट वगैरह, इनको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहा जाता है। देन अगेन हमारे पास कुछ न्यूमरल एडजेक्टिव, बेसिकली इसमें 2 टाइप्स ऐसी हैं न्यूमरल एडजेक्टिव में। जिस तरह कोई चीज़, जिस तरह इसको हम कहते हैं ऑर्डिनल और कॉर्डिनल। ऑर्डर में जो होते हैं उनको ऑर्डिनल एडजेक्टिव कहा जाता है, वो भी बेसिकली न्यूमरल एडजेक्टिव में आता है। जिस तरह फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बॉय, ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। और इसी तरह कॉर्डिनल एडजेक्टिव, ये वो एडजेक्टिव हैं जो कि वैसे 1, 3, 4, 5, 7 ऑर्डर के नहीं, वैसे लिखे जाते हैं, उसको कॉर्डिनल एडजेक्टिव कहा जाता है। और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ये बेसिकली इंडेफिनिट एडजेक्टिव ही की टाइप है। आगे हम ज़रा मूव करते हैं। नंबर 3 पे हमारे पास है टाइप्स ऑफ एडवर्ब। सो एडवर्ब आर बेसिकली words that are used in sentences to describe or change the meaning of a verb or adjective or even add other adverb. यानी कि एडवर्ब जो है वो किसी भी वर्ब, एडजेक्टिव या इवन एडवर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई करता है। इसको मॉडिफायर भी कहते हैं। जिस तरह एडजेक्टिव को क्वालिफायर कहते हैं, इसी तरह एडवर्ब्स को मॉडिफायर भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास है एडवर्ब ऑफ टाइम। इसी में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी आता है, जिस तरह वंस, नेवर, टुमारो, डेली। ये ऊपर वाले जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। आगे टुमारो, यस्टरडे, ये वैसे एडवर्ब ऑफ टाइम में आते हैं। फ्रीक्वेंसी मोस्टली फिक्रे के शुरू में आते हैं, वर्ब से पहले आते हैं, और एडवर्ब ऑफ टाइम जो हैं वो एंड पे आते हैं। देन वी हैव एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस ये बेसिकली किसी भी एक्शन के लोकेशन के बारे में बताता है कि वेयर का ये आंसर करता है कि वो एक्टिविटी कहाँ परफॉर्म हुई। एनीवेयर, समवेयर, नियर, फार, you will meet, they will meet you there, and spring flowers bloom everywhere। तो जो लोकेशन है यानी कि पोजीशन को जो शो करता है उसको एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। देन एडवर्ब ऑफ मैनर, बेसिकली ये हाउ का आंसर करते हैं कि कोई एक्शन कैसे परफॉर्म किया गया। मिसाल के तौर पर ही डन हिज ड्यूटी, ही हैज़ डन हिज ड्यूटी। वो हाउ को किसमें एडजस्ट करेंगे, ही ऑनेस्टली परफॉर्म्ड हिज टास्क, he joyfully completed the assignment, he cunningly won the match। तो ये हाउ का आंसर करते हैं। देन वी हैव एडवर्ब ऑफ डिग्री। जिस तरह हमारे पास एडजेक्टिव की मुख्तलिफ डिग्रीज़ हैं, इसी तरह हमारे पास एडवर्ब की भी डिग्रीज़ होती हैं, और इसमें फुली, पार्शली, ऑल टुगेदर, ऑलमोस्ट, कम्प्लीटली वगैरह जैसे वर्ड शामिल है। तो ये बेसिकली हमने आज टाइप्स ऑफ नाउन, देन टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, और देन टाइप्स ऑफ एडवर्ब जो है वो
डिस्कस किया है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इसके रिमेनिंग जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जिस तरह हमारे पास वर्ब है, प्रोनाउन है, प्रपोजिशन वगैरह जो हैं वो भी हम उसको साथ साथ डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही हमारे आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।